محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ لوگوں سے ملتے وقت مسکرانا، اندھے کو راستہ دکھانا، راستے سے پتھر ہٹانا، جب مریض کی عیادت کو جانا تو اسے اپنے لیے دعا کرنے کو کہنا، کیونکہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ PDS چاول کی کالا بازاری، ضلع میں عروج پر عوام کو راست و بالراست طور پر لوٹ رہے کالا بازار۔ حکومت خصوصی طور پر ٹاسک فورس کے ذریعے اقدامات لے ضلع کے کئی رائس ملر سرگرم بودھن اسمبلی سے چلانے۔ منوگڑو ضمنی انتخابات کے تحت ضلعی TRS صدر اور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے TRS حکومت کی جانب سے نامزد امیدوار کے پربھاکر ریڈی کے حق میں انتخابی مہم عمل میں لاتے ہوئے مقامی عوام کو TRS کی فلاحی اسکیمات سے کروایا واقف۔ شہر نظام آباد کی مستقل پر واقع جنا پور کے اربن پارک کا کلکٹر نارائن ریڈی نے کیا مشاہدہ۔ وہ اب تک مکمل ہونے والے کاموں کے علاوہ مختلف مراحل میں جاری ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ۔ جماعت اسلامی ہند نظام آباد کی جانب سے 20 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب نمرا گارڈن فنکشن ہال میں خطاب عام بعنوان رجوع القرآن کا انعقاد، عوام سے شرکت کی اپیل۔ تلنگانہ عوام کی خوشحالی کے لیے ہی YSRTP پارٹی کا قیام عمل میں لانے کا ڈسپلے ریلوے اسٹیشن مارکیٹ میں منعقدہ روڈ شو سے YSRTP صدر وائس شرمیلا کا خطاب۔ دیش میں بڑا بوال، روزی روٹی کا سوال، WPI کی جانب سے ملک گیر مہم کا آغاز، عوام مہم سے جڑتے ہوئے کامیاب بنانے کی شہری صدر ریاض پٹیل نے کی عوام سے اپیل۔ دیپاولی تہوار کے دوران پٹاخہ جات کی دکانات قائم کرنے والے یقینی طور پر محکمہ پولیس کی اجازت لینے کا کمشنر آف پولیس کیانا گراجو نے دی ہدایت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ PDS چاول کی کالا بازاری، ضلع میں عروج پر عوام کو راست و بالراست طور پر لوٹ رہے کالا بازاری۔ حکومت خصوصی طور پر ٹاسک فورس کے ذریعے اقدامات لے ضلع کے کئی رائس ملر سرگرم بودھن رکن اسمبلی شکل عامر۔ ضلع میں غیر قانونی طور پر PDS چاول کو مارکیٹ میں منتقلی عمل میں لانے والے رائس ملرز پر PD ایکٹ کے تحت کیس درج کرتے ہوئے CID کے ذریعے تحقیقات کر کے رائس ملرز پر سخت قانونی کارروائی کرنے کے لیے CM KCR سے رکن اسمبلی بودھن شکل عامر نے خواہش کی۔ اسی طرح سے PDS چاول کو گرفت میں لینے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس ٹیم کا قیام عمل میں لا کر بلیک مارکیٹ میں ملوث رائس ملرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے، کیونکہ PDS چاول کو بلیک مارکیٹ میں منتقلی عمل میں لانے سے غریب عوام راست و بالراست طور پر نقصان اٹھا رہے ہیں، جس سے رائس ملر کے خلاف وقت بہ وقت جانچ کرتے ہوئے مکمل تحقیقات کی جائے۔ اسی طرح سے حاصل ہونے والی اطلاع کے مطابق محکمہ پولیس کے ملازمین بھی اس میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہے۔ دیش میں بڑا بوال، روزی روٹی کا سوال، WPI کی جانب سے ملک گیر مہم کا آغاز، عوام مہم سے جڑتے ہوئے کامیاب بنانے کی شہری صدر ریاض پٹیل نے کی عوام سے اپیل۔
آج ویلفیئر پارٹی آف انڈیا شاخ نظام آباد کی جانب سے ایک صحافتی نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہری صدر WPI و ریاستی کمیٹی ممبر ریاض پٹیل نے کہا کہ مرکزی و ریاستی حکومت کے گمراہ کن وعدے و کاموں سے عوام میں شعور بیدار پیدا کرنے کے لیے WPI کی جانب سے ملک گیر سطح پر ایک مہم بعنوان دیش میں بڑا بوال روزی روٹی کا سوال، جو اس ماہ کی 15 سے لے کر 31 اکتوبر تک جاری رہے گی، جس کے تحت مختلف پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں، جس میں دستخطی مہم، گھر گھر دورہ، تشہیری مہم و دیگر شامل ہے، جس میں عوام سے جڑنے کی اور اسے کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ محمد مجاہد، M.A. جبار، شیخ عمران، محمد علیم، محمد خدیر، اذان بن عبداللہ و دیگر شامل ہیں۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا نظام آباد ٹاؤن صدر ریاض خان پٹیل میں ایک بے روزگاری اور مہنگائی کے واسطے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا جیسا پورے انڈیا میں نیشنل کیمپیننگ کر رہے کہ بے روزگاری ہٹاؤ اور مہنگائی کو کم کرے۔ اس کے لیے پورے تلنگانہ میں بھی آواز اٹھا رہے، جیسا حیدرآباد، جیسا نظام آباد، جیسا ٹانڈور اور ایک دو اسٹیٹ ہے، 5 جگہوں پہ آواز اٹھا رہے اس کے لیے کہ جو 2014 میں سلنڈر کا ریٹ، گیس سلنڈر کا ریٹ جو ہے 410 روپے تھا، جو آج جو ہے 2022 میں 1100 روپے ریٹ ہو گیا، جو مہنگائی کم کرتے بول کر وعدہ کرے تھے، مگر مہنگائی کم نہیں ہوئی، مہنگائی زیادہ بڑھ گئی، اور 2 کروڑ لوگوں کو روزگار دیتا بول کے وعدہ کرے تھے، مگر وہ بھی 2 کروڑ لوگوں کو روزگار نہیں مل سکا۔ کئی ایجوکیٹڈ لڑکے جو ہے پڑھ کے خالی کہیں پر پہ جاب کر لے رہے، ان لوگوں کو جاب دیتے بول کے نہیں دے، کہیں بھی جاب کر لے رہے 5-6 ہزار روپے کی نوکری سے۔ ان لوگوں کا یہ مقصد تھا کیا آپ لوگ جاب دیتے بول کے نہیں دیے، اور ہم تلنگانہ گورنمنٹ سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ 12% ریزرویشن ملک کا وعدہ کرے تھے آپ، اور ابھی سننے میں آ رہا ہمارے کو کہ آپ امپلائمنٹ کے ایگزامس دے رہے بول کے، مگر اس کو پوری طرح سے عمل کرے اور مہنگائی کم کرے۔ ہم یہ تلنگانہ میں 15 اکتوبر سے لے کر 31 اکتوبر تک پورے تلنگانہ میں، پورے انڈیا میں یہ نیشنل کیمپیننگ چلیں گا ہمارا۔ روٹی روزی کا ہے سوال اور بے روزگاری کا ہے سوال، اس کے لیے پوری ویلفیئر پارٹی آف انڈیا پورے تلنگانہ میں ہمارے اسٹیٹ پریزیڈنٹ سید کمال اختر صاحب ان کے ساتھ مل کر ہم جو ہے پورے تلنگانہ میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور سگنیچر کیمپیننگ بھی رکھیں گے ہم، اور یہ ایسے پامپلٹ جو ہے سو ہم بانٹیں گے پوری پبلک میں ڈور ٹو ڈور جا کر، اور اس کو پورا کمپلیٹ 31 تاریخ تک کریں گے ہم۔ جماعت اسلامی ہند نظام آباد کی جانب سے 20 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب لمرا گارڈن فنکشن ہال میں خطاب عام بعنوان رجوع القرآن کا انعقاد، عوام سے شرکت کی اپیل۔ بروز 20 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب ایک عظیم الشان خطاب عام رجوع القرآن کے عنوان پر لمرا گارڈن فنکشن ہال، بودھن روڈ، بعد نماز مغرب رکھا گیا ہے۔ اس خطاب عام کو محترم جناب محمد جعفر صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، محترم جناب مولانا حامد محمد خان صاحب، امیر حلقہ تلنگانہ، اور جناب MM بیگ زاہد صاحب، سیکریٹری اسلامی معاشرہ، خطاب فرمائیں گے۔ اس کے اندر خواتین کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد 20 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب لمرا گارڈن فنکشن ہال ضرور تشریف لائیں۔ رجوع القرآن کے عنوان پر ہمارے ذمہ داروں کے خطابات ہوں گے انشاءاللہ۔ منوگڑو ضمنی انتخابات کے تحت ضلعی TRS صدر آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے TRS حکومت کی جانب سے نامزد امیدوار کے پربھاکر ریڈی کے حق میں انتخابی مہم عمل میں لاتے ہوئے مقامی عوام کو TRS کے فلاحی اسکیمات سے کروایا واقف۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلعی TRS صدر جیون ریڈی نے منوگڑو ضمنی انتخابات کے تحت TRS پارٹی کی جانب سے نامزد امیدوار کے پربھاکر ریڈی کے حق میں انتخابی مہم عمل میں لاتے ہوئے ہر ایک گھر سے رجوع ہو کر
CM KCR की कामयाब क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के बारे में वाकिफ करवाते हुए कहा कि राजगोपाल रेड्डी की मफाद की वजह से ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद हो रहे हैं। अवाम सोच समझ कर सही उम्मीदवार को मुंतखब करने से हलक़े की तरक्की के अलावा मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल भी हल होंगे। इसीलिए TRS हुकूमत की जानिब से नामजद किए गए उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को कार के निशान को वोट देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके साथ TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा मुकामी अवाम भी मौजूद थे। మరి మునుగోడు నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ బీజేపీ పాలన వల్ల వారి యొక్క ఫ్లోరోసిస్ నీళ్ళు ఇవ్వడం వల్ల ఫ్లోరైడ్ నివారణ చేయకపోవడం వల్ల వికలాంగులైనటువంటి మా వికలాంగ సోదరులకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 16 రూపాయల పింఛన్ గురించి, అదేవిధంగా వారి ఇళ్లలో మంచినీళ్ళు ఇస్తున్న విషయం ప్రతి ఇంటికి నల్లదిప్తే నీళ్ళు ఇస్తూ దాదాపుగా 50,000 కోట్ల రూపాయలతో రాష్ట్రం అందిస్తే మునుగోడు నియోజకవర్గంలో ఆ రోజు వాజ్పేయి ప్రధానమంత్రి ఉన్న రోజు RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजेडी गोवर्धन के अहकामात के मुताबिक डिचपली मंडल घनपुर देहात में बस सर्विस का इफ्तिताह अमल में लाने पर अवामी नुमाइंदों ने किया इजहार तशक्कुर। निजामाबाद रूरल हल्के असम्बली के डिचपली मंडल में वाक़ई घनपुर देहात में मौजूद मॉडल स्कूल जाने के लिए तलबा को होने वाली दिक्कत के ताल्लुक से TRS साबिक़ा मंडल सदर शकरी कुंडे की जानिब से RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजेडी गोवर्धन के इल्म में लाने के बायस इन्होंने फौरी तौर पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए घनपुर देहात में RTC बस सर्विस की खिदमत शुरू की, जिस पर TRS साबिक़ा मंडल सदर शकरी कुंडा, मौजे के PACS डायरेक्टर सतीश रेड्डी व मुकामी सरपंच रंजीत की जानिब से RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजेडी गोवर्धन को इजहार तशक्कुर पेश किया गया। RTC చైర్మన్ గారి దగ్గరకు వెళ్ళి మా బాధలు ఇవన్నీ చెప్తే తాను వెంటనే స్పందించి మీ గన్పూర్ గ్రామానికి అంత ఇబ్బంది అయితే సరే విద్యార్థుల కోసం బస్సు నేను వేయిస్తా అని చెప్పేసి మాట ఇవ్వడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ బస్సు వేయడం నిజంగా చాలా సంతోషం। मुनगुरु हल्के में मुनाकिद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में BJP के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को कामयाब बनाने की MP DRV ने मुकामी अवाम से की ख्वाहिश। मुनगुरु हल्का असम्बली के कट्टूपाल में क़याम अमल में लाया गया मीडिया इजलास से निजामाबाद MP DRV ने खिताब करते हुए मुनगुरु हल्के में BJP के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की अवाम मोदी हुकूमत के तायद में होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BJP के रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, दिनेश कुमार व दीगर ने शिरकत की। మునుగోడు ఉప ఎన్నిక ఎందుకు వచ్చింది? రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు 3.5 సంవత్సరాల నుంచి మునుగోడు నియోజకవర్గానికి కనీసం గజ్వేల్లో వచ్చిన దాంట్లో సగమన్నా పావుమందమన్నా ఇవ్వండి, సిద్దిపేటకు వచ్చిన 700 కోట్లల్లో కొద్ది భాగమన్నా మాకు కూడా ఇవ్వండి, మా రోడ్లు వేసుకుంటాము, ఇక్కడ स्कूल बावपरचुకుంటాము। दीपावली त्यौहार के दौरान पटाखा जात की दुकानात कायम करने वाले यकीनी तौर पर महकमे पुलिस की इजाज़त लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने किया इजहार। ज़िले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने सहाफ़ती नशर का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत GO नंबर 163 के तहत तेलंगाना गेजेट के मुताबिक निजामाबाद आर्मूर बोधन डिवीज़न के अहाते में दिवाली त्यौहार के दौरान पटाखा जात की दुकानात का क़याम अमल में लाने वाले यकीनी तौर पर ACP से इजाज़त लेते हुए इससे मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात के लिए डिवीज़न सतह के अहदेदारान से रब्त पैदा करें। इन्होंने खबरदार किया कि अगर ACP की इजाज़त के बगैर आर्जी तौर पर दुकानात कायम किए गए तो इनके खिलाफ एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी और पटाखा जात की दुकानात को कायम करने वाले इन उसूल व ज़ाबित पर अमलावरी करे। पहले मरहले के तौर पर पटाखे की दुकानें मुताल्लिक़ा कल्याणा मंडपम व खुली जगहों पर कायम करते हुए कल्याणा मंडपम खुले मुकाम से ताल्लुक़ रखने वाले NOC सर्टिफिकेट पेश करते हुए हर दुकान के दरमियान तकरीबन 3 मीटर फासला होना चाहिए। इसी तरह से पटाखा जात के दुकानात रिहायशी मकानात से 50 मीटर के फासले रहने चाहिए और 1 किलोमीटर में 50 दुकानात से ज्यादा नहीं कायम करने का इजहार किया।
पुलिस नौजवानों की अजीम कुर्बानियों के पेश नज़र हर साल 21 अक्टूबर को यौम शोहदा पुलिस मनाते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू का सहाफ़ती बयान। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हर साल 21 अक्टूबर को महकमे पुलिस की जानिब से रियासत भर में यौम शोहदान पुलिस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाता है। रियासत में अमन व अमान को कायम रखने के लिए महकमे पुलिस ने अपनी जानों की कुर्बानी देते हुए मुल्क भर में अमन को कायम रखा और आज इनकी याद में DGP के अहकामात के मुताबिक यौम शहीदान पुलिस के मौके पर यौम शोहदा पुलिस के मौके पर 21 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर निजामाबाद तारपुर बोधन डिवीजन में वाक़ पुलिस स्टेशन इहाते में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए मज़मून नवेसी मुक़ाबलाजात का इनेकाद अमल में लाए जा रहे हैं। तलबा के पुलिस स्टेशन में ओपन हाउस प्रोग्राम, स्कूल के तलबा, पुलिस के एहलकारों के बच्चों को मज़मून नवेसी मुक़ाबलाजात, पेंटिंग के मुकाबले, पुलिस एहलकारों के लिए मज़मून नवेसी मुकाबले, खून का अतिया कैंप से वाबस्ता प्रोग्राम। अक्टूबर 21 तारीख को शोहदा पुलिस को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश की जाएगी। अक्टूबर की 31 तारीख को मुनक़दा कमिश्नरेट में होने वाले कौमी एकजहती प्रोग्राम में तमाम पुलिस मुलाज़मीन शिरकत करने के ताल्लुक़ से अहकाम जारी किए। बिचकुंदा में तेलंगाना टी क्लब का शानदार इफ्तिताह। बिचकुंदा मंडल मुस्तखर पर के कंदरपल्ली चौराहे के करीब MPP अशोक पटेल के हाथों तेलंगाना टी क्लब का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। तेलंगाना टी क्लब मालिया गुलाम अहमद ने इफ्तिताह के मौके पर शिरकत फरमाकर मेहमानान का शानदार इस्तकबाल किया। इन राजू मार्केट कंपनी चेयरमैन TRS पार्टी अखिलती सीनियर कायद शेख पाशा, कोऑप्शन मेंबर जावेद सिद्दीकी, कांग्रेस पार्टी अखिलती कायद हाफिज गौस मुजाहिद ने तेलंगाना टी क्लब मालिया गुलाम अहमद को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना टी क्लब के इफ्तिताही तकरीब में मदीना मस्जिद, अब्दुल मुकीद, सैयद अब्रार अली, यूसुफ चौश, रफ़ी पटेल, हाजी लक्ष्मण के अलावा दीगर मौजूद थे। आरमुरुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन ज़िले TRS सदर जीवन रेड्डी ने मुनगुडू हल्का असम्बली में ज़िमनी इंतखाबात के तहत TRS हुकूमत की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक़ में इंतखाबी मुहिम अमल में लाने के दौरान कांग्रेस BJP से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आरमुरुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन ज़िले TRS सदर जीवन रेड्डी ने मुनगुडू हल्का असम्बली में ज़िमनी इंतखाबात के तहत TRS हुकूमत की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक़ में इंतखाबी मुहिम अमल में लाने के दौरान मौज़े से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस और BJP के कायदीन ने आरमूर MLA जीवन रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को TRS पार्टी का खंडवा पहना कर पुरजोर इस्तकबाल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़र नहीं मिलने का इजहार किया। इन्होंने इस मौके पर डंडू मलकापुर देहात में मुक़ीम अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल से आगाही हासिल करके फौरी तौर पर हल करने का तयक़ुन दिया। शाह निज़ामाबाद के मुस्तखर पर वाक़ चिनापुर के अर्बन पार्क का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुशाहिदा करते हुए अब तक मुकम्मल होने वाले कामों के अलावा मुख्तलिफ मराहिल में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ चिनापुर के पास मौजूद अर्बन पार्क का मुशाहिदा करते हुए ओपन जिम, प्ले जोन एरिया, कलवर्ट की तामीर, पर्कुलेशन टैंक, वाटर टावर के अलावा रोड से मुताल्लिक़ा तामीरी कामों का जायजा लेते हुए अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इसी तरह तातुल का शिकार कामों को नवंबर की 15 तारीख तक मुकम्मल करने के लिए इक़दामात अमल में लाने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि अर्बन पार्क के इफ्तिताही तक़रीब तक साफ और शिफाफ पीने का पानी, बरक़ी की सरबराही व टॉयलेट को दस्तयाब में लाने के अलावा मिशन भगीरथ के मेन पाइपलाइन से अर्बन पार्क को कनेक्शन देते हुए बरक़ी की सरबराही के लिए फौरी तौर पर इक़दामात करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान को अहकामात जारी किए। और इन्होंने कहा कि बच्चों के खेल के लिए 22 लाख रुपए मसारिफ से क़याम अमल में लाए जाने वाले चिल्ड्रन प्ले जोन के कामों को फिलफुर मुकम्मल करने के लिए अहदेदारान को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में महकमे जंगलात अहदेदार विकास मीना, FDO भवानी शंकर, फॉरेस्ट रेंज अहदेदार श्रीनिवास, डिप्टी रेंज अहदेदार सौम्या, मुकामी सरपंच लक्ष्मी और दीगर ने शिरकत। केनरा बैंक चीफ जनरल मैनेजर के अहकामात के मुताबिक निज़ामाबाद रीजनल मैनेजर P श्रीनिवास के ज़ेरे निगरानी में रोड शो का इनेकाद अमल में लाते हुए अवाम को खुसूसी फिक्स डिपॉजिट, सोने के जेवरात पर खर्चात, होम लोन व गाड़ियों के लोन के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई।
کنارا بینک کے چیف جنرل مینیجر کے احکامات کے مطابق نظام آباد ریجنل مینیجر پی سرینواس کے زیر نگرانی میں روڈ شو کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے خصوصی ڈپازٹ و سونے کے زیورات پر قرضہ جات گاڑیوں کے لون کے علاوہ ہوم لون کے تعلق سے مقامی عوام کو شعور بیداری عمل میں لائے گئے۔ اس موقع پر کنارا بینک ریجنل مینیجر سرینواس راؤ نے کہا کہ 666 یوم میں ہی پرسنل ڈپازٹ اسکیم کے تحت بہترین شرح سود 70% کی پیشکش کی جائے گی، لہٰذا کھاتے دار و عوام اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی۔ اس پروگرام میں ڈویژنل مینیجر راگھویندر کمار، اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ اشوک و دیگر نے شرکت کی۔ సో ఈరోజు మేము రోడ్ షో క్యాంపెయిన్ చేసాము. ఈ క్యాంపెయిన్ 7th అక్టోబర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఎక్కడ బెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇండస్ట్రీ లెవెల్లో 7% ఇస్తున్నాము, అలాగే సీనియర్ సిటిజన్కి 7.5% ఇస్తున్నాము. సో ఇదే విధంగా మనము అప్రోచ్ కావడానికి లేకపోతే కస్టమర్స్ ఫీట్ ఆన్ స్ట్రీట్ మీద వెళ్ళి ఎవ్రీ కస్టమర్కు రీచ్ కావడానికి మేము ఈ రోడ్ షో కండక్ట్ చేస్తున్నాము. संस्थान नारायण पुरम मंडल की सरवेल देहात में TRS-V TRS-Y कायदीन की जानिब से क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी मुकामी रुकन असम्बली ने की शिरकत। संस्थान नारायणपुरम मंडल के सरवेल देहात में TRS-V TRS-Y कायदीन की जानिब से क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी ने व MLA जी राजेश्वर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम पर रियासती वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान खदमात अंजाम देने वाले कई अवाम व तलबा तंजीम के कायदीन को MP टिकट देने के अलावा कई अफराद को नॉमिनेटेड ओहदे दिए गए, जिसमें गवर्नमेंट वेब पालका सुमान GMLA किशोर के नाम काबिल ज़िक्र होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS-V कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। तेलंगाना अवाम की खुशहाली के लिए ही YSRTP पार्टी का क़याम अमल में लाने का डिचपल्ली रेलवे स्टेशन मार्केट में मुनक़दा रोड शो से YSRTP सदर वाइस शर्मिला का खिताब। निज़ामाबाद रूरल हल्के में गुज़िश्ता 2 यौम से वाइस शर्मिला की जानिब से पैदल यात्रा जारी है। कुलासपुर मुलंगी से होते हुए पैदल यात्रा डिचपल्ली रेलवे स्टेशन मार्केट पे पहुंचने के बाद YS शर्मिला ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में तरक्की ना होने के बराबर होने का इजहार करते हुए कहा कि TRS कांग्रेस BJP कायदीन की बातों में आकर धोखा ना खाए। तेलंगाना अवाम की खुशहाली के लिए YSRTP पार्टी का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ रूरल हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान के अलावा मुकामी अवाम मौजूद थे। कमिश्नर ऑफ पुलिस के अनागराजू के अहकामात के मुताबिक यौम शोहदा पुलिस तकारीब के पेश नज़र नंदीपेट पुलिस स्टेशन के गीता कन्वेंट स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के लिए ओपन हाउस प्रोग्राम अमल में लाया गया। ज़िले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के अनागराजू के अहकामात के मुताबिक अक्टूबर 21 तारीख को यौम शोहदा पुलिस तकारीब के पेश नज़र नंदीपेट पुलिस स्टेशन के गीता कन्वेंट स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के लिए ओपन हाउस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पुलिस मुलाजमिन की जानिब से फराहम करदा खदमात के ताल्लुक से तलबा को वाकिफ करवाया गया और इस प्रोग्राम में गीता स्कूल प्रिंसिपल सागर, पुलिस मुलाजमिन SI आरिफ, ASI राजेंद्र व दीगर ने शिरकत की। कोटगिर मंडल के मुकाम पर बोधन ACP किरण कुमार ने यौम शोहदा पुलिस तकारीब के पेश नज़र ज़िले परिषद स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा को ऑनलाइन धोखाधड़ी साइबर क्राइम के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई। कोटगिर मंडल के मुकाम पर बोधन ACP करण कुमार ने यौम शोहदा पुलिस तकारीब के पेश नज़र ज़िले परिषद स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा को साइबर क्राइम व ऑनलाइन धोखाधड़ी के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि किसी अजनबी फ़र्द की जानिब से पैन कार्ड, OTP या किसी आधार कार्ड का नंबर बताने के लिए इसरार करते तो हाजिर दिमाग के साथ इनके मंसूबे को नाकाम बनाए। बाज़ शातिर अफराद की जानिब से ख़वातीन को लॉटरी के नाम पर धोखा देते हुए इनके बैंक खातों में मौजूद नगद रकम को गायब कर सकते हैं, लिहाजा ऐसा धोखा देने वाले शातिर अफराद के ताल्लुक से चौकसी इख्तियार करते हुए इनके मंसूबों को नाकाम बनाने का इजहार किया। హైదరాబాద్ లో కూడా ఎందుకంటే నేను బేసిక్ గా 31 ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ లో 24 ఇయర్స్ నేను హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ లో చేశాను. నాకు నేను పనిచేసిన పోలీస్ స్టేషన్స్ కూడా అంతా కమ్యూనల్లీ సెన్సిటివ్ పోలీస్ స్టేషన్స్. నేను SI గా SHO గా చేసిన పోలీస్ స్టేషన్స్ అన్ని కూడా बालकुंडा के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में इस माह की 15 तारीख से इस माह के अख्ताम तक रियासत तेलंगाना सतह पर साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत साइबर क्राइम व शीटिंग के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाए जा रहे हैं। बालकुंडा के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में इस माह की 15 तारीख से इस माह के अख्ताम तक रियासत तेलंगाना सतह तक साइबर अवेयरनेस 2022 प्रोग्राम के तहत साइबर क्राइम शीटिंग के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई जा रही हैं। इस मौके पर आर्मो डिवीज़न शीटिंग इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ने खिताब करते हुए साइबर क्राइम के अलावा व्हाट्सएप हैकिंग के ताल्लुक से
तलबा को शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि खवातीन के साथ नाज़िबा हरकत करने के ताल्लुक से आने वाले फरियाद पर फिलफुर कार्रवाई करने का इजहार किया। पोचाराम सीसी ड्रेनेज से वाबस्ता कामों का ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव MPP के श्रीनिवास ने इफ्तिताह अमल में लाया। एरपल्ली मंडल के पोचाराम देहात में MPP ZP वाइस चेयरमैन जिले परिषद फंड 1 लाख रुपए के मसारफ से सीसी ड्रेनेज तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि जिले परिषद से मंजूर होने वाले 1 लाख रुपए के फंड तरक्याती कामों को शुरू करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पोचाराम सरपंच के इंदिरा करण, नायब सरपंच J शोभा, MPP के श्रीनिवास, ZP वाइस चेयरमैन मानिक, रजिता यादव, MPTC P पद्मा, मोतेना, वार्ड मेंबर्स S सुलोचना, सुनकरी सुदर्शन, मुकामी अव्वाम विजय के सुदर्शन व दीगर ने शिरकत की। ఎమ్మెల్యే గారు అయితే ప్రతి గ్రామంలో కూడా రూర్బన్ ద్వారా కానీ CDP ద్వారా కానీ మరి అదేవిధంగా ఇతర నిధుల ద్వారా కూడా तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की धरपली ZPTC बाजरेडी जगर ने मुस्तहिक़ीन के घर जाकर किया हवाले। धरपली मंडल के मुकाम पर ZPTC बाजरेडी जगर ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिक़ीन के घर जाकर हवाले के। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में चीफ मिनिस्टर KCR की क़ियादत में सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए CM मारिफ कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक, रायतु बंधु, रायतु बीमा जैसी मुनफरद स्कीमात को रूबे अमल में लाया जा रहा है, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़र नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी, वाइस MPP नवीन रेड्डी, मंडल पार्टी सदर महिपाल यादव, TRS कारकुनान व क़ायदीन ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते आज के सरखे पर। PDS चावल की काला बाजारी जिले में उरूज पर अवाम को रास्तों बिल रास्त तौर पर लूट रहे काला बाजारी। हुकूमत खुसूसी तौर पर टास्क फोर्स के जरिए इक़दाम ले जिले के कई राइस मिलर सरगर्म बोधन असम्बली से खिला है। मुनुगुडू सिम इंतखाबात के तहत जिलाई TRS सदर आर मुल्क ने असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने TRS हुकूमत की जानिब से नामजद उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक में इंतखाबी मुहिम अमल में लाते हुए मुकामी अवाम को TRS की फलाह स्कीमात से करवाया वाकिफ। शहर निजामाबाद की मुस्तखर पर वाक़े जिनापुर के अर्बन पार्क का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया मुशाहिदा। वो अब तक मुकम्मल होने वाले कामों के अलावा मुख्तलिफ मराहिल में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। जमात इस्लामी निजामाबाद की जानिब से 20 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मगरिब लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में खिताब आम बउनवान रुजू अल कुरान का इनेकाद अवाम से शिरकत की अपील। तेलंगाना अवाम की खुशहाली के लिए ही YSRTP पार्टी का क़याम अमल में लाने का डिस्प्ले रेलवे स्टेशन मार्केट में मुनाकिदा रोड शो से YSRTP सदर वाइस शर्मिला का खिताब। देश में बड़ा बवाल, रोजी रोटी का सवाल। WPI की जानिब से मुल्क गिर मुहिम का आगाज। अवाम मुहिम से जुड़ते हुए कामयाब बनाने की शहरी सदर रियाज पटेल ने की अवाम से अपील। दीपावली त्यौहार के दौरान पटाखा जात की दुकानात कायम करने वाले यकीनी तौर पर महकमे पुलिस की इजाजत लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने दी हिदायत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।